Atri Academy. In this video, we will study about the remaining five methods of the expression of the concentration of the solution. We are studying solution, the second chapter of 10 plus 2 chemistry, and in the early two video we have already studied about solution, its type and components of the solution, and the three methods of the expression of the concentration, that is percentage, strength and molarity. Now today in this video we will study about molality, normality, mole fraction, mass fraction and part per million. So let us learn together, and first of all we start studying molality. What is molality? Molality of a solution may be defined as the number of moles of the solute. Number of moles of a solute dissolved in 1000 gram of solvent. Gram of a solvent, and it is denoted by small letter m. It is denoted by small letter m. And mathematically, for the numerical problem, m is equal to a upon m into 1000 by b. Here, because it is also a small m, we write here m2, or we may also write here mb. Here m2 or mb, it means either we can express this way or this way, is the molecular mass of a solute. Molecular mass of a solute. A is weight of the solvent, weight of solute in grams, and B is weight of the solvent, in grams. So it is here, it is called molality. Means molality is the number of the moles of the solute dissolved in 1000 gram of the solvent. Molarity में क्या था? Number of the moles of the solute dissolved per liter of the solution. But molality में क्या है? Number of the moles of the solute dissolved in 1000 gram of solvent. The difference is almost clear. ठीक है? तो देखिए यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसकी बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है कि फाइंड आउट द molality of an aqueous solution formed by dissolving 6 gram of urea. 6 gram of urea in 200 gram of water. 200 gram of water. It is a numerical problem, so we will solve it and find out the molality of the solution. So first of all, start writing down given. It is solution. What is given in the question? Write it down. So first of all, what is given here? Find out the molality of an aqueous solution formed by dissolving 6 gram of urea. It means weight of, what is given? Weight of a solute, that is urea. Weight of solute is equal to 6 gram. 6 gram. Now in 200 gram of water means weight of a solvent. That is, which is water. Is 200 gram. So what does it ask? Find out the molality. So what is asked? Molality. Molality means A upon MB into 1000 by B. MB मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया है, जब स्मॉल m के साथ, यहाँ मोलालिटी के केस में हम A या B का प्रयोग करते हैं। A सॉल्वेंट के लिए होता है, B सोल्यूट के लिए होता है। इसी तरह से हम न्यूमेरिक में लिखेंगे अगर, तो M1 और M2 लिख सकते हैं। M1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट
और M2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन का वो क्या है, सॉल्वेंट है, इसलिए आइदर 1 लेटर A और digit 1 is there for solvent and letter B or 2 is written for solute. Keep it in mind. So it is here. We know A is given here. A is given here. Urea, that is A, is given already. Water, which is taken as B, given already. But we need to find out the molecular mass. We know the formula of urea is NH2CO NH2. It is urea. The molecular mass comes 60 because I know well, due to practice it is in my mind already. It is by heart. मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकला ये. देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 1 और 2. एटॉमिक मास ड्यू टू नाइट्रोजन इज due to one atom is 14 and there are 2 atoms, so 14 cross 2 is equal to 28, and due to oxygen the atomic mass is 16 and there is only one atom of oxygen, then it is contribution is 16. Then comes term of carbon. Due to carbon there is the atomic mass of carbon is 12 and there is only one carbon, so contribution in the molecular mass is 12 and there are 4 hydrogen atoms. And because the atomic mass of hydrogen atom is 1 and there are 4 hydrogen atoms, so contribution is 4. If we sum up this 6 4 10, 8 to 10 8 means 20, 2 carry 6, 2 2 4 5 और 6, ये आएगा 16. ठीक है, this is it. So हम क्या लिखेंगे, मोलैलिटी यहाँ जाएगा अपना A जो कि दिया हुआ है 6 यहाँ लिखा हमने, और एटॉमिक मास जो मोलिकुलर मास था हमने यूरिया का निकाला है, यहाँ पे कितना था 60 into 1000 by B. B is the amount of the solvent in grams. It is given already 200, so we cross it 200. After calculation it comes 5 and 6 it crosses by 10. It means there comes 5 by 10. It comes 5 by 10. So we can write it down 0.5 m. So write it like the molarity. In the molarity, the unit itself is we denote by capital M. But in case of molarity, we right answer is 0.5 m. Write down the unit of the answer as well, because the examiner, whenever there is such a kind of the numerical answer in the examination, and you must put the unit. Because it is molarity, so it is written in small m. But in case it was molarity, you would have to write a capital M. So we are discussing here about molarity. So it is this way we can calculate. Now the next method of expression of the concentration is normality. What is normality? Let us study. And then we will go for one numerical problem. Now the fifth method. The fifth method of expression of concentration is normality. What is it? Normality. Normality may be defined as the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. Again, unlike that molarity, it is to be measured in liter of the solution. It is denoted by capital N. It is denoted by capital N. And for numerical value, capital N is equal to A upon M into 1000 by V. So equivalent gram, equivalent mass. The one thing which differ here is equivalent mass. So what is here? A weight of solute in gram, weight of a solute in grams, and V is the volume of solution, volume of a
solution in ml, or we can say centimeter cube, and equivalent, यहाँ हमने लिखा है equivalent mass, equivalent EQMS का मतलब है यहाँ पे equivalent mass. So one thing to explain here further, what is equivalent mass? How will you come to know? So this is all about normality. This is the definition of normality. The number of the grams equivalent of the solute dissolved in 1 liter of the solution. It is denoted by letter capital N, and N is equal to this. So because for the numerical value, let me learn how to find out the gram equivalent of a substance. So let us learn. Gram equivalent. How to measure gram equivalent? See here. If it is an element, it is an element. For an element, the gram equivalent. For an element, gram equivalent is equal to weight, atomic weight of the element upon its valency. Say for example, the element is sodium. So atomic weight of element sodium is 23, and because its valency is 1, what is valency? The number of the electrons which participate in the bonding and present in the outermost cell. It is called the valency of the atom or the element. Because the valency for sodium is 1, so the gram equivalent mass of sodium will remain 23. But in case of it is magnesium, because the say you may take it as a carbon. For carbon, it is 12, the atomic weight, which is a atomic mass number is 12, and its valency is 4. So gram equivalent is 3. Okay. Now similarly, there is a formula for acid. Equivalent mass of an acid. It can be calculated by molecular mass of acid upon its basicity. It's a basicity. What is basicity? Basicity may be defined as the number of H positive ions and acid furnace in aqueous solution. यानी कोई भी एक एसिड जलीय घोल में कितने हाइड्रोजन आयन देगा, वह उसकी क्या कहलाती है? बेसिसिटी. से फॉर एग्जांपल HCl, जब HCl को पानी में डाला जाएगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. तो यानी क्या दिया? एक हाइड्रोजन आयन दिया, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? यानी ये क्या गया? बेसिसिटी. इसकी बेसिसिटी हुई 1. बेसिसिटी. अगर हम बात करते हैं H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा? 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl SO4 2 नेगेटिव जनरेट करेगा. यहाँ इसमें 2 हाइड्रोजन आयन दिए, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी? 2. इसी तरह से H3PO4 फास्फोरस एसिड है, यहाँ ये क्या करेगा? इट विल गिव 3 हाइड्रोजन आयन एंड 1 फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव. तो यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी? 3. अब मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है. ठीक है. हाइड्रोजन में अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन में जैसे एटॉमिक मास नंबर कितना है? 1. क्लोरीन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 35. ठीक है. तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना? 36. यानी HCl का जो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हुआ? 36. HCl का मॉलिक्यूलर मास 36 है, तो मास इक्विवेलेंट मास निकालना है HCl का, तो मॉलिक्यूलर मास बटे अपॉन इट्स बेसिसिटी.
तो HCl के लिए कैसे निकली जाएगी, इक्विवेलेंट मास कैसे लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना HCl का 36/1 दैट इज इक्वल टू 36/1 क्यों लिया हमने समझाने के लिए बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया है। सो एसिड के अंदर वो एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी होती है। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा, याद रखना। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास होता है 98, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इसके लिए कितना है 2, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या 49, यानी 49 क्या गया ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली आप इस तरह से निकाल सकते हो, ये यूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर कैलकुलेट करते रहे, तो आप बेहतर तो समझ लीजिए कि कोई अगर एसिड आपको दिया गया है आप उसके फार्मूले से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि न्यूमेरिकल में उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हो। फिर आपने ये देखना है कि ये जो एसिड है ये कितने हाइड्रोजन आयन फर्निश कर सकता है और उसके इक्वल वो उसकी बेसिसिटी होगी। मॉलिक्यूलर मास को जब बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका ग्राम इक्विवेलेंट। सो नाउ अबाउट वी फाइंड आउट फॉर ए बेस, फॉर ए बेस के लिए कैसे निकालेंगे, बेस के लिए भी एक फार्मूला है, यानी सॉरी अब हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस ऑफ ए बेस अपॉन इट्स एसिडिटी। एसिडिटी, व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस इज द नंबर of hydroxy ions, हाइड्रोक्सी आयंस कैसे लिखा जाता है, O कैपिटल H कैपिटल -1 नेगेटिव, सॉरी -1, ठीक है -1, ये है हमारा हाइड्रोक्साइड। द एसिडिटी ऑफ ए बेस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन इट फर्नेस इन एक्वस सॉल्यूशन मींस वहां एसिड के मामले में हमने क्या बोला सर, बेसिसिटी, अगर किसी बेस को पानी में डाला जाता है तो वो OH आयन देगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं हम, ये आएगा हमारा NaOH, NaOH को अगर पानी में डालेंगे तो ये टूट के क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहां पे इसकी एसिडिटी कितनी होगी, केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन दिया, इसकी बेस एसिडिटी होगी 1, एसिडिटी इसकी कितनी होगी 1। अगर हम बात करते हैं ये CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां ये जलीय गुण में आ जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयंस, 2 दिए इसने, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी होगी आपकी 2। ठीक इसी तरह से अगर हम लेते हैं AlOH होल थ्राइस, यहां ये क्या देगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3 हाइड्रोक्साइड आयन, सो यहां एसिडिटी कितनी होगी एसिडिटी होगी 3। अब मान लीजिए हम यहां बात करते हैं कि हमने ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है बेस का, तो बेस का मॉलिक्यूलर मास और उसकी एसिडिटी NaOH के लिए क्या आएगा, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन NaOH का कितना है 40, पहले भी हम कर चुके हैं न्यूमेरिकल में। इसकी एसिडिटी कितनी है 1, तो इसका मतलब ये है इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी कितना रहेगा आपका 40/1 = 40, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आता है, एटॉमिक मास होता है 40, और O और H ये कितनी बार है 2 बार, ऑक्सीजन की वजह से एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, और 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ 2, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 4 और 74। इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस कितना आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना है आपका 74, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने यहाँ पे 2 OH आयन दिए, एसिडिटी 2 ही, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 37, तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 37। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस।
यूजुअली ये क्या रहेगा, कोई एलिमेंट रहेगा या कोई फिर एसिड होगा या कोई बेस होगा. So this is we can calculate the gram equivalent of a substance. Now we come back to again normality. I just said what is normality. Normality may be defined as the number of the gram equivalent of a substance of the solute dissolved in 1 liter of the solution. So यहाँ हमने फार्मूला दिया था n is equal to a upon gram equivalent into 1000 by v. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है. यहाँ क्या कहता है कि फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 4 gram of NaOH dissolved. Find out the normality of a solution of a solution formed by dissolving 4 gram of NaOH in 250 ml of the solution. It is the simplest numerical. We will have a special video for the numerical problems of the solution chapter in the end of this chapter. All you keep watching, subscribe the channel, share the channel, and one day when we get a sufficient subscriber related to 12th class, we will have a live session for the numerical problems. All the numerical problems related to solution chapter. So it we will take in the last video. And we will thoroughly study, we will have studied entirely the solution chapter. Then we will go for all kind of the numericals. Particular video, whatever will be the length of the video, 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, we will go with that. But just simply you know the basic things. Just I explain you, and then we will proceed to basic, simple to complex form. So it is the simple numerical. Here it says what is given here. Given the amount of solute. That is A is given 4 grams. Amount of a solution, which is V, is given 250 ml. And because molecular mass, because the solute is NaOH, so molecular mass is 40. So N will be equal to A upon gram equivalent into 1000 by V. We know A is given here 4 and gram equivalent, because molecular mass of NaOH is 40 and NaOH is a base, and for a base the acidity is 1, so gram equivalent will remain the same. So we divide 4 by 40 into 1000 by 250. से इट जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, 4 goes 10 times to this 40 and then 250 goes 4 times to 1000. It is 4 by 10, so it will be 0.4 and we write it N. The answer of the solid question will be 0.4 N. This is how we calculate the normality of the solution. Now the next is mole fraction. What is mole fraction? See here. What is it? Mole fraction. Mole fraction, it may be defined as the ratio of the
number of moles of the given component to the total number of moles of all the components present in the solution. It is denoted by letter X, small x. See here what it says. मान लीजिए ये कहता है कि एक सॉल्यूशन में कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सिर्फ एक रेशियो है. किसका रेशियो है, जिस भी कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, उसको सॉल्यूशन में कुल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सभी कंपोनेंट्स के मिला के उससे डिवाइड कर दो. जो ये रेशियो निकलेगा इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन माने रेशियो. ठीक है. सो इट इज रिटन हियर x इज इक्वल टू से, मैं एक बार फिर बता देता हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा. यहां सॉल्वेशन में क्या है, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक कंपोनेंट कहता है सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट कहता है सॉल्यूट. ठीक है. तो अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिखाना हो तो हम Na या फिर N1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. आगे पूरे चैप्टर में ऐसे दिखाया गया है, तो याद रखिए सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, NB और N2. सिमिलरली हमने बताया ना x क्या है, मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का लिखना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, XA या फिर X1. ठीक है. और इसी तरह से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, XB और X2. तो ये तो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हैं, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे. सिंपली आपको ये अच्छे से दिमाग में आपको सेट कर लेने हैं. कीप इन योर मेमोरी ऑलवेज. सो लेट मी अगेन come to the topic. What is mole fraction? Mole fraction may be defined as the ratio of the number of moles of the given component. Given component किसी भी component का निकाल सकते हैं हम mole fraction. Solute का भी निकाल सकते हैं और solvent का भी निकाल सकते हैं. To the total number of the moles of the all the components present in the solution. So it is denoted by x. अगर मान लीजिए हमने निकालना है mole fraction of solvent, हम इसको कैसे लिखेंगे, XA. मैंने यहाँ पे बताया ना, सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट. सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स लिखना तो Na या फिर N1 लिखा जाएगा. इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या लिखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन के लिए लिखा जाता है XA या फिर X1. तो हमने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन कंपोनेंट. गिवन मतलब जिसका निकाले उसी के, तो हम किसका निकाले, सॉल्वेंट का. तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb. ठीक है. यानी कंपोनेंट ऑल द कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट क्या सॉल्यूशन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. तो अगर हम ऐसी ये लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा जाएगा, NB, क्योंकि जिसका हमने निकालना है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर करना है, एंड वी डिवाइड इट विद द टोटल नंबर ऑफ Na प्लस NB. ठीक है. ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए फार्मूला रहता है. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं और ठीक है, मैंने बताया Na की जगह हम N1 भी लिख सकते हैं. तो हम यूं भी लिख सकते हैं सॉल्वेंट के लिए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट. इट कैन आल्सो बी रिटन दिस वे, X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है. यहाँ पे क्या रहेगा, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N2 क्या है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट. ये आएगा सॉल्वेंट. N1 क्या है,
number of moles of solvent, N2 क्या number of moles of a solute, moles of a solute, ठीक है। तो हमने जिसका निकालना है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि Na क्या है, यहाँ पे Na क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसी तरह से Np को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, ठीक है। और XA आपको मैं बता चुका हूं, यहाँ पे XA क्या आएगा सॉल्वेंट के लिए, XB क्या आएगा सॉल्यूट के लिए, और X1 सॉल्वेंट के लिए, और X2 करेंगे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माने X2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा N2। अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालने हैं तो N2 को ऊपर ले लेंगे, N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपॉन N1 प्लस N2। so this is known as mole fraction, this is known as a mole fraction। so अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ये रेशियो है इसीलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं, याद रखिएगा इस बात के लिए। और ये XA क्या है आपका, XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ, XA क्या है मोल फ्रैक्शन X1 और X2 इज इक्वल टू 1, या फिर आप यूं लिख सकते हो XA प्लस X2 इज इक्वल टू सॉरी XB इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि सभी टोटल XA और X2 को निकालेंगे तो क्या है सम आएगा A। तो अगर हम इस इक्वेशन को समझे तो यूं भी लिख सकते हैं ना, X1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस ये प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का जाएगा 1 माइनस X2, या सिमिलरली X2 कैन बी लिखना है X2 यहाँ होता जाएगा तो क्या 1 माइनस X1, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए इस तरह से हमारे को इक्वेशन याद रखनी चाहिए, और इस तरह से चाहे इसको XA और XB से डिनोट करो बात वही है। तो यहाँ पे क्या आएगा XA इज इक्वल टू क्या 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू क्या 1 माइनस XA, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि किस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए गिवन कहता है कि फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 10% of which is dissolved in an aqueous solution by weight, ठीक है, by weight। देखिए इसने क्या क्या दिया, बस इतना था, कुछ भी नहीं दिया। अभी इसको कैसे सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन दे दी इसने, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल कितना होगी 10%, इट मींस क्या हुआ 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड। इसका मतलब क्या है हमारा अमाउंट ऑफ इथेनॉल कितना हो गया, अमाउंट ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू हो गया 10 ग्राम्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसने क्या लिखा है एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट, एक्वस सॉल्यूशन बाय वेट का मीनिंग क्या हुआ कि पानी में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाउंट ऑफ, क्या आएगा अमाउंट ऑफ वाटर क्या आ गया, क्योंकि 10% तो क्या आ गया आपका इथेनॉल हो गया, और परसेंट मींस 100, इसका मतलब क्या है 90% क्या आ गया इसके अंदर वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है कितना आ गया 90 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के कितने आएंगे, दैट इज जिसको हम क्या लिखते हैं NB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास क्या था, इथेनॉल का बन होता है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। अगर हम इसको निकालते हैं कार्बन 2 गए, एक कार्बन की वजह से कंट्रीब्यूशन होता है 12, तो 2 की वजह से कितना हो गया 24, और ऑक्सीजन की वजह से होता है 16, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6 हो गया, तो 10 और 6
4 10 और 6 16, 2 और 1 3 और 1 4 46, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 46। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल किसके बराबर होगा, मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इथेनॉल का क्या लिखेंगे, एन बी, यानी जो इथेनॉल के लिए, इथेनॉल किसका काम कर रहा है, व्हिच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज टेकन एज सोल्यूट, और सोल्यूट के लिए हम क्या लिखते हैं, एन बी। तो यहां हमने इसमें लिख दिया एन बी, तो इसका वेट कितना है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला हमने, कैलकुलेट किया 46, तो एन बी कितना आ गया 10/46। ठीक इसी तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे पानी है, क्योंकि इसने दिया ना एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट यानी Na, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90, क्योंकि ये कितना है 10% सॉल्यूशन है ना बाय वेट, तो इसमें 10% क्या है इथेनॉल, और एक्वस सॉल्यूशन है तो रेस्ट ऑफ 90% क्या है वाटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है आपका 18, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 18 से, ठीक है, तो ये हमारा क्या है Na। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक बार मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, यहां हुआ 10/46, दैट इज इक्वल टू आया हमारा 0.2174, ठीक है, Nv, और Na कितना हुआ, Na इज इक्वल टू कितना आया 90/18, इसको फिर करते हैं अपन 90/18, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो XA कैसे निकलेगा, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, हमने Na भी निकाला है, Na कितना निकला 5, और Nb कितना निकला है 0.217, तो यहाँ पे X से निकाला है तो Na कितना है 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 अपॉन Na की वैल्यू कितनी 5 प्लस यहाँ पे आएगा 0.2174, तो अगर हम इसको करें ये आ जाएगा हमारा 5/5.2174, that is equal to 0.9583, ठीक है। और N2 कैसे निकालोगे, XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB कैसे निकालोगे, NB अपॉन Na प्लस में Nb, तो Nb की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.2174 बाय 5 प्लस 0.2174, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको करके देख लेते हैं, 0.2174 बाय 5.2174, दैट इज इक्वल टू 0.0417, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या 7 3 10 8 1 9 और 1 कैरी 10 5 4 9 और 1 कैरी 10 और 9 और 1 कैरी यानी 10 यानी 1, यानी मैंने बताया था ना कि x1 इज प्लस x2 इज ऑलवेज 1, निकल गया x1 और x2 हमारा क्या निकल गया, देखिए इसको यहां करके देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, कैमरे में यहां हमने लिखा है, यहां निकाल दिया हमने, दोनों को सम किया, यहाँ पे ये सम किया तो दोनों का सम कितना आया 1, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला बता रखा है हमने x1 plus x2 इक्वल टू 1, सो अगर हम चाहते तो जब हमने यहाँ एक को निकाल लिया था हमने, तो दूसरे को अगर हम इस तरह नहीं निकालते हैं तो हम इसको कैसे निकाल सकते थे, xb इज इक्वल टू 1 माइनस xa, यानी हम इसको निकाल सकते थे 1 माइनस 0.9584, तो ये हमारा कितना निकलता, ये निकलता हमारा 0.0417, so this is how we can calculate the mole fraction. Now another is mass fraction. Seventh method is mass fraction. Mass है
fraction. Mass fraction can be defined as the ratio of weight of given component. Weight, or you may say write it mass of given component to the mass due to all the components, and it is denoted by small letter w. यानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मास फ्रैक्शन, आपने मास फ्रैक्शन को समझा, वहां पे आप सॉरी मोल फ्रैक्शन में आपने XA और XB लिया, यहाँ पे X की जगह लिख लीजिए W लिख दीजिए, WA और WB। यानी जैसे क्या लिखेंगे, मास फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट का मास फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, यानी WA, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, weight of solvent in the solution upon weight of solvent plus weight of a solute, means weight of one component to the weight of all the components. This ratio is known as a mass fraction. Similarly, the mass fraction of a solute, mass fraction of solute is denoted by WB. वही फार्मूला है XA और XB, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पीछे से समझिए। XB के लिए क्या देगा हमें, weight of the solute in the solution upon total weight, यानी weight of solvent plus weight of a solute. It is mass fraction. Now the next and the last method of expression is ppm. Now ppm, the eighth method, part per million, इसको बोलते हैं ppm. What is ppm? It may be defined as the amount of a solute, yeah, we can say the mass of a solute in the solution, in the equal to कर दो 10 to raise power 6 part of the solution is known as ppm. The mass of the solute equal to 10 to the 6th part of the solution is known as ppm. यानी ppm of solute, is equal to क्या आएगा, mass of a solute upon mass of a solution into 10 to the power 6, ये होगा मोल फ्रैक्शन। यानी 1,00,000वां हिस्सा 10 to the power 6 मीन्स हो गया जो टोटल सॉल्यूशन है उस टोटल वॉल्यूम की तुलना में 10 to the 6 पार्ट में जो अमाउंट, जो मास सॉल्यूट का है वह माना जाता है उसका ppm, पार्ट पर मिलियन। यानी प्रत्येक मिलियन में 10 लाख, सॉरी 1 लाख 10 लाख 1 लाख सॉरी per million, part per million means equal to 10 to the 6th part of the total। ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर क्वालिटी को अपने चेक करना है तो यहाँ पर पोल्यूटेंट जो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये एयर में उनकी जो टोटल एयर के अंदर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मापी जाती है ppm में। ठीक है, यानी अगर हम मान के चलते हैं 10 to the 6th पार्ट, ये बहुत छोटा मानक हो गया, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से जो छोटी चीजें हैं जैसे बहुत माइन्यूट, छोटी नहीं बहुत माइन्यूट सूक्ष्म, जैसे पोल्यूशन लेवल ऑफ कार्बन ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, ड्यू टू सल्फर ऑक्साइड्स,
and other pollutant present in the air. This is all about the methods of the concentration of the solution. We have studied it, and the video is going very lengthy. Keep watching, subscribe the channel, and let your friends know about this channel. And please inspire them, insist them, recommend them to subscribe the channel, to watch the channel. Make if you really liked it, share it, like it, and write your comments. And we will be back again with the new topic, the next topic, vapor pressure, the factors affecting the vapor pressure and Rolle's law, and in the next video. Then keep staying on the channel. We will be very soon back with you. Thank you very much.